class in operations management. We have earlier discussed about introduction to operations management, right? लोगों ने पहले अगर कोई दिक्कत हो आप लोग अनम्यूट करके मुझे बताइए, ठीक है? We have discussed about the introduction part. We already did, right? The introduction part and the strategy part, that is we have already discussed about the different type of operations strategy. I hope you all remember this. Right, we have earlier discussed this. So our today's topic, I'll be discussing about the important steps in the development of a new product. Okay, this is also very important as this also comes under your strategy only regarding your operation strategy. If your strategy is to bring in new product, suppose you need to develop a new product, then in that case regarding new product development, what are the steps that need to be followed? This is required every time and in every subject, because either you do it in marketing or in operations or in production, everywhere you need to follow the certain steps in new product development. We all know that any organization need to come up with new product, right? Every time constant innovation and creativity are required. Means today if we are working with one product or if we are using one product, you will find it after 6 months this will become either obsolete or customers are looking for different options, because maybe competitors has come up and a lot of thing has come. So this new product development is actually a very normal steps nowadays, normal stages, and this is a continuous process. Means every time this new product development, innovation, creativity process, research and development are taking place and continues. This is a constant process. Fine. As we all know that in change is only constant. आज की डेट में change is the only constant. अगर आप change नहीं करोगे, upgrade नहीं करोगे तो नहीं टिकोगे. So it is clearly understood that new product development is very much needed. Fine. So the first step that we will follow is idea generation. ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जब हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं. नाउ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जैसे मैंने पहले बताया आइडिया जनरेशन स्टेज में हम क्या करते हैं. डेफिनेटली आपके पास न्यू आइडियाज कैन कम अप, न्यू आइडियाज, और आप बोल सकते हो अपग्रेडेशन टू योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, अपग्रेडेशन हो सकता है, maybe few innovations can come up or something like that. So this ideas can always come up from various sources, so we need to identify the sources from this new ideas can come. Now who could be the sources, who all are can be the sources of new ideas? This new ideas can come from your employees. ठीक है, सबसे important sources होते हैं आपके ideas के, they are the customers. Customers are the best source of your new ideas, because customer are using the product, so they can definitely tell you more about it, right? Any intermediary, कोई इंटरमीडियरीज हो सकता है जो आपको बताए प्रोडक्ट के बारे में, कोई वेंडर्स हो सकता है जो प्रोडक्ट को डील कर रहा है, मार्केट तो है ही, मार्केट एंड दी कॉम्पिटिटर्स. सो मार्केट, कॉम्पिटिटर्स, तो आइडियाज कैन कम अप फ्रॉम एनी सोर्सेज, राइट? नाउ जैसे मैं आप लोग को एक बता रही हूँ वर्लपूल के बारे में आप लोग जानते हो. तो वर्लपूल का मतलब तो एक बिजनेस को कितना कस्टमाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल वर्लपूल ने दिया है. ठीक है, वर्लपूल एक वर्ल्ड वॉशर उन्होंने बनाया. वर्लपूल प्लान टू मेक अ वर्ल्ड वॉशर. वर्लपूल कंपनी के बारे में आप लोग जानते हो, वर्लपूल आता है ना. दे प्लान्ड टू मेक अ वर्ल्ड वॉशर, ठीक है, which could be sold in any part of the world. Such a washing machine would have to suit both American and European preference. काफी अलग है. वर्ल्ड वॉशर उन्होंने एक ऐसा बनाया जो कि ये मशीन जो है, ये वॉशिंग मशीन जो है, ये हर जगह पर, मतलब आप सोच सकते हो ये एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है. स्टैंडर्डाइज मतलब ये है कि एक ही प्रोडक्ट है विद सेम फीचर्स एंड इट विल बी सोल्ड वर्ल्ड वाइड. एवरीवेयर इट विल बी सोल्ड विद द सेम फीचर्स, कोई चेंजेस नहीं है.
लाइक वी ऑल नो, जैसे हर मार्केट के हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ता है। जब आप एंटर करते हो, व्हेन यू एंटर इनटू द इंटरनेशनल मार्केट, आइदर आप जैसे फूड एंड बेवरेजेस ले लो, कोको कोला ले लो, तो इंडिया में जैसे कोको कोला बिकते हैं, या पिज्जा को ले लो, डोमिनोज पिज्जा वगैरह नॉट, इंडिया में जैसे बिकते हैं, दे जस्ट चेंज द टेस्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्टर्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ इंडियन कंज्यूमर। तो उनकी जो यहाँ की जो टेस्ट है उसके हिसाब से वो चेंज कर दे रहे। तो अगर टेस्ट के हिसाब से अगर चेंज हुआ तो फिर वो कस्टमाइज हो गया। पर अगर एक ही प्रोडक्ट, इफ ओनली सेम प्रोडक्ट विद द सेम क्वालिटी एंड फीचर्स आर सोल्ड एवरीवेयर, तो वो स्टैंडर्डाइज है। तो वर्लपूल ने जो वर्ल्ड वॉर से तैयार किया था वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट था विच विल बी सोल्ड थ्रू आउट दी वर्ल्ड, आइदर वो अमेरिका में हो, अमेरिकन कंपनीज अमेरिकन कंट्रीज में हो, या यूरोपियन कंट्रीज में हो। अमेरिका और यूरोप को यहाँ पर क्यों लिया है बोलिए तो? ये दो स्पेसिफिक कंट्री को क्यों डिमार्क करने का जरूरत है यहाँ पर? बहुत सारी तो कंट्रीज हैं, फिर अमेरिका और यूरोप के बारे में क्यों लिया? कोई बता सकते हैं आप लोग कि स्पेसिफिकली अमेरिकन और यूरोपियन का एग्जाम्पल यहाँ क्यों लिया गया है? यू ऑलवेज शुड नो अबाउट दिस, क्योंकि मार्केट को स्टडी करनी है तो मार्केट के कल्चर को समझना है। अमेरिकन और यूरोपियन कल्चर बिल्कुल अलग है, ठीक है? इसी वजह से उन दोनों को मतलब आप कॉन्ट्रास्टिंग में ले सकते हो, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में। द अमेरिकन्स प्रेफर टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन व्हाइल यूरोपियंस प्रेफर फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन। अब अमेरिकन्स का जो प्रेफरेंस है, उनको पसंद है टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन। दिस इज डेफिनेटली डन एज पर द सर्वे। और यूरोपियन मार्केट में उन लोगों ने देखा, उन लोग वहां पे उन लोग को फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन पसंद है। ओके, फ्रंट लोडिंग। नाउ the front loaders were more efficient and environment friendly machine than the top loading machine since they use less energy. फ्रंट लोडर जो होता है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है। फ्रंट लोडिंग के एग्जांपल मतलब इसके एफिशिएंसी के बारे में बताते हैं। दे आर मोर एफिशिएंट एंड आल्सो एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ये बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। ओके, Americans however prefer top loaders since they had more capacity. Even then, front loaders slowly increased their market share from 0 to 5% in US market within a decade. पर धीरे धीरे देखा जा रहा है ये जो फ्रंट लोडिंग है धीरे धीरे अमेरिकन मार्केट में भी एक्सेप्टेंस होने लगी, ठीक है? फ्रॉम 0 to 5% इन द यूएस मार्केट, दिस इज अ केस। Whirlpool wanted to be a significant player in this growing market. अब क्योंकि ये फ्रंट लोडिंग टॉप अमेरिकन्स के बारे में यहाँ क्लियर इंडिकेशन है दैट अमेरिकन्स प्रेफर टॉप लोडिंग क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती, ठीक है? और फ्रंट लोडिंग का एडवांटेज है दैट इट इज मोर एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। दो अमेरिकन का प्रेफरेंस है टॉप लोडिंग, स्टिल फ्रंट लोडिंग जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे अपना मार्केट कैप्चर कर रहा है, ठीक है? इसके बारे में बताया जा रहा है, कैप्चर कर रहा है। तो वर्लपूल जो है, वर्लपूल वांटेड टू कैप्चर और वर्क ऑन दिस कि इस जगह को वो फुलफिल कर सके या इस जगह में वो एडवांटेज ले सके। वर्लपूल वांटेड टू बी अ सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द ग्रोइंग मार्केट. So Whirlpool formed a project team to develop a front loader that would appeal to both European and American consumers. अभी Whirlpool का टारगेट क्या था? अमेरिकन में जो ये 0 to 5% इंक्रीज हुआ है इन दी फ्रंट लोडिंग सेक्शन, इसमें वो काम करना चाहते थे। मीन सम सॉर्ट ऑफ इनोवेशन और क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड इन दिस, क्योंकि Whirlpool wanted to create a product, Whirlpool wanted to create a front लोडिंग वॉशिंग मशीन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ वॉशिंग मशीन, नाउ व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय बोथ अमेरिका में भी चले और यूरोप में भी चले, ठीक है? सो उन लोगों ने क्या किया, वर्लपूल ने क्या किया, वर्लपूल कंडक्टेड अ टीम, इसके लिए एक टीम को फॉर्मेशन किया जिसमें 65 मेंबर्स थे इनिशियली। दे कंडक्टेड अ टीम ऑफ 65 मेंबर्स, जहाँ पे कुछ लोग जो जर्मनी के थे, कुछ लोग इटालियन थे, ठीक है? कुछ लोग इटालियन थे, उसमें यूएस इंजीनियर्स भी थे, यूएस के इंजीनियर्स थे, डिजाइनर्स थे। यूएस से क्यों थे स्पेसिफिकली? क्योंकि फ्रंट लोडिंग वाला जो यूएस में लाना है, यूरोप में तो फ्रंट लोडिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, बट अमेरिका में फ्रंट लोडिंग को इंक्रीज करना है। 0 to 5% शेयर इंक्रीज हुआ ही है और वर्लपूल उसमें इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी लाना चाह रहे हैं। तो
इस वजह से उन लोगों ने यूएस से ज्यादा डिप्लॉयमेंट किए, लाइक यूएस इंजीनियर्स, डिजाइनर्स हुए या मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ये सब यूएस के थे ज्यादा से ज्यादा लोग, एंड प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट, ठीक है. डेफिनेटली दे वर मेंबर्स फ्रॉम जर्मन एंड इटली एंड मेनी अदर कंट्रीज. The outcome of this effort was Duet, a front loader with capacity that was 10 to 15% larger than the top loader sold in US. अब देखो इस जो ये इनोवेशन जो हुआ, वर्लपूल ने क्या किया, वर्लपूल की स्ट्रैटेजी यहाँ पर देखो. वर्लपूल ने पहले तो मार्केट रिसर्च किया, उन्होंने मार्केट को स्टडी किया. मार्केट रिसर्च में ये क्लियर डिमार्केशन हो गया कि अमेरिकन्स का प्रेफरेंस है टॉप लोडिंग, ठीक है, और यूरोपियंस का प्रेफरेंस है फ्रंट लोडिंग. ये प्रोडक्ट के बारे में क्लियर है, वॉशिंग मशीन ही है बट दोनों का प्रेफरेंस अलग है, टॉप लोडिंग और फ्रंट लोडिंग. क्यों? बिकॉज टॉप लोडिंग का लोडिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इज ग्रेटर देन फ्रंट लोडिंग, ठीक है. अब फ्रंट लोडिंग का अपना एक एडवांटेज है क्योंकि एफिशिएंसी उसमें ज्यादा है एंड ऑल. तो अभी जो वर्लपूल ने ये रिसर्च टीम कंडक्ट की विद सो मेनी पीपल्स एंड ऑल, उन लोगों ने एक निकाल जो लेकर आए, दे कम अप विद दिस डुएट फीचर्स, जहां पे फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन तैयार की गई विथ, आप समझ लो ये जो लोडिंग कैपेसिटी है, ये जो यूएस में चल रहा था लोडिंग कैपेसिटी जो मार्केट में एग्जिस्टिंग है, उससे 10 to 15% इंक्रीज करके एनहांस्ड लोडिंग कैपेसिटी के संग वो लेकर आए. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द यूएस इन फॉल 2001. The European version, sub-branded DreamSpace with a different size, styling and Spain and wash cycles, was launched in the summer of 2002. The same basic machine will be sold in Asia also. ये उस टाइम की बात है, तो एशिया में भी बिक ही रहा है. तो ये 2001 में आया था यूएस में, यूएस इन फॉल 2001. यूरोप में लेकर आए थे विद सब ब्रांडिंग ड्रीम स्पेस बोल के कंपनी, वर्लपूल ने ड्रीम स्पेस कंपनी के संग ये वर्जन लेकर आए थे या उस ब्रांडिंग के संग, विद डिफरेंट साइज, स्टाइलिंग एंड स्पिन एंड वॉश साइकिल. मतलब यूरोपियन वर्जन जो है, यूरोपियन वर्जन का जो ब्रांड था उसका नाम था ड्रीम स्पेस, उसमें डिफरेंट स्टाइल, साइज एंड ऑल. तो वो वहां पर यूरोप में आया 2002 में, ठीक है, और एशिया में भी तो फिर धीरे धीरे आई गया. तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ये जो आइडिया जनरेशन है, आइडिया जनरेशन जो पहला स्टेज है, दिस कैन कम फ्रॉम एनी सोर्स. तो आइडिया यहाँ पर कहाँ से आया, वर्लपूल के पास ये आइडिया कहाँ से आया? डेफिनेटली ये मार्केट से आया. मार्केट में क्या है, ठीक है, क्योंकि दे आर सेलिंग वॉशिंग मशीन्स ओनली, तो वर्लपूल नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट. देखो यहाँ पे जितने भी आइडिया जनरेशन में भी जितने कंपोनेंट है, जब आप एज अ मार्केटर, आपको नॉट ओनली एज एन ऑपरेशंस हेड और ऑपरेशंस मैनेजर, एज अ मार्केटर ऑल्सो, आप दोनों तरीके से ही सोच रहे हो ना. जब आपको मार्केट को समझना है और यू आर क्रिएटिंग एन आइडिया, तो आपको दोनों चीज ही कंसिडर करनी है. तो मार्केट को जब आप स्टडी कर रहे हो, तो मार्केट में डिफरेंट ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन, कौन से मार्केट को स्टडी कर रहे हो, उस मार्केट को कैसे आप डिवाइड करोगे. द सेगमेंट ऑफ मार्केट यू विश टू एंटर, लाइक आई विश टू एंटर इनटू दिस सेगमेंट. इस सेगमेंट में फिर सब सेगमेंट हो जाते हैं, सब सेगमेंट में फिर मेरा कौन सा टारगेट है with the characters and features. So now this will come into the entire marketing position. तो मैं marketing portion में नहीं जा रही हूँ अभी, just तुम लोग को समझाया. तो आइडिया जनरेशन वाला जो स्टेज है, तो ये समझ में आया वर्लपूल में कैसे आइडिया जनरेट हुई फ्रॉम दी मार्केट इटसेल्फ, जब हम मार्केट को स्टडी करते हैं, है ना. तो फर्स्ट स्टेज वाज द आइडिया जनरेशन. जब आप आइडिया जनरेट कर लेते हो, then you will move on to the next step. Second step क्या है आइडिया जनरेशन के बाद? Second step is your feasibility study. Feasibility studies, ठीक है. मतलब whatever idea we have selected or we have generated, we need to consider its feasibility, whether it is feasible. ये चलेगा, मतलब करने लायक है या नहीं है, feasible है या नहीं है, वो मुझे देखना है. इसको कैसे, इसकी feasibility कैसे चेक करेंगे हम? बोथ टेक्निकली, कि भाई इसमें क्या टेक्नोलॉजी लगने वाली है, क्या कैपेसिटी है, क्या उसमें खर्च लगने वाला है, दोनों चीजें हमको देखना है. इकोनॉमिकली, ठीक है, बोथ वे वी नीड टू चेक द feasibility. Such studies test whether the production of the product is technically feasible and profitable to produce and market. ये जो feasibility studies करते हैं, तो हमें दोनों चीज समझ में आता है कि ये जो प्रोडक्ट है
बनाने लायक है कि नहीं, बनेगा या नहीं, क्या टेक्नोलॉजी लगेगी, टेक्नोलॉजी अपने पास है या नहीं है, whether we have to outsource or we have to take it from other। तो ये एक बात हो गई। सेकेंड इज इकोनॉमिकल, फीजिबल है नहीं। देखो प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गई टेक्निकल एस्पेक्ट में आपका एवरीथिंग रिलेटेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देन योर टेक्नोलॉजी दैट इज अवेलेबल फॉर द प्रोडक्ट एंड ऑल, प्रोसेस एंड ऑल, प्रोडक्ट के प्रोसेस क्या होंगे, रॉ मटेरियल्स क्या होंगे, ये वाला पार्ट इधर आ गया। देन इकोनॉमिकली में हम दोनों चीज देखते हैं कि ये अवेलेबिलिटी के संग मैं प्रॉफिटेबली कमा पाऊंगी कि नहीं, मैं बना पाऊंगी कि नहीं और कमा पाऊंगी कि नहीं, दोनों चीज मतलब मुझे इनकम जनरेट करना है, सो आई विल बी एबल टू जनरेट द इनकम और नॉट, राइट। अब देखो if the idea is found to be both technically and economically feasible, then what we will do, we will in the next step we will design a prototype। प्रोटोटाइप डिजाइन का मतलब होता है उसके जैसा, बिल्कुल। मतलब एक अगर मुझे वर्लपूल ने अगर फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन का एक तैयार किया मॉडल, तो उसके जैसा, जैसे ये एक मशीन मैं बना रही हूँ तो उसके जैसा एक मॉडल हम तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये उसके जैसा एक मॉडल है प्रोटोटाइप, ये ड्राइंग में नहीं, ये एक्चुअल प्रोडक्ट बनता है विद दैट फीचर्स। उसमें हाँ 100% नहीं होते हैं, उसका जस्ट एक सैम्पल वर्जन आप समझ लो प्रोटोटाइप डिजाइन, ठीक है। प्रोटोटाइप ऑफ द प्रोडक्ट इज डेवलप्ड। प्रोटोटाइप में सारे फीचर्स नहीं होते हैं, व्हाट फाइनल प्रोडक्ट है, मे बी 90% होंगे या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ठीक है। प्रोटोटाइप उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है, प्रोटोटाइप टेस्टिंग। फोर्थ स्टेप इज प्रोटोटाइप टेस्टिंग। अब प्रोटोटाइप टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, इस प्रोटोटाइप को टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग इज डन फॉर दिस प्रोटोटाइप, ठीक है। द प्रोटोटाइप इज टेस्टेड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एंड डिफेक्ट्स आर नोटेड। प्रोटोटाइप को टेस्ट हम स्टैंडर्ड कंडीशन में करेंगे और कोई डिफेक्ट्स होगी देन वी विल नोट दैट डिफेक्ट्स, फाइन। ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट द टेस्टिंग द नेसेसरी चेंजेस आर मेड। उसके बाद प्रोटोटाइप का फिर से एक बार रीटेस्टिंग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम बार बार प्रोटोटाइप को टेस्ट कर रहे हैं until we get the satisfactory result, ठीक है। the process is carried out until the performance of the prototype is satisfactory, ये हो गया। now फिफ्थ स्टेप में हम लोग आ जाते हैं इनिशियल डिजाइन। अब हम लोग आ जाएंगे प्रोडक्शन मॉडल में। इनिशियल डिजाइन जहां पे आपका देखो एक्चुअली प्रोटोटाइप डिजाइन हो जाता है, आपका जो डिजाइन डिपार्टमेंट है ऑपरेशंस के पार्ट में आते हैं प्रोटोटाइप टेस्टिंग एंड इनिशियल डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन मॉडल। ये हो गया कोर आपका ऑपरेशंस का काम, इनिशियल डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन मॉडल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, द इनिशियल प्रोडक्ट डिजाइन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फाइनल प्रोडक्शन डिजाइन आफ्टर परफॉर्मेंस टेस्टिंग। अब इनिशियल प्रोडक्ट डिजाइन को हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली एक प्रोडक्ट डिजाइन तैयार करेंगे, उसके बाद प्रोडक्शन, इनिशियल डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन मॉडल प्रोटोटाइप का बना लिया हमने। उसके बाद प्रोटोटाइप टेस्टिंग हो गई, प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप टेस्टिंग किसकी हो रही है, प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप टेस्टिंग हमने कर लिया, वी ऑलरेडी डिड इट। नाउ विल मूव ऑन टू इनिशियल डिजाइन ऑफ द प्रोडक्शन मॉडल। मतलब अब हम प्रोडक्शन मॉडल को देख रहे हैं। तो प्रोडक्शन मॉडल जो है, अभी प्रोडक्शन मॉडल एक तैयार करेंगे, कहाँ पे प्रोडक्शन होना है, प्रोडक्शन डिजाइन एंड एवरीथिंग, ठीक है, इकोनॉमिक स्टडीज एवरीथिंग। यहाँ पर हमें सारी चीजें ही देखनी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसा है, किस किस तरीके से होने वाला एवरीथिंग। नेक्स्ट स्टेप वुड बी इकोनॉमिक इवैल्यूएशन। अब हम इकोनॉमिकली इसको इवैल्यूएट करेंगे। इकोनॉमिकली इवैल्यूएट जो है, सिंपली इकोनॉमिक इवैल्यूएशन मतलब क्या हो गया कि अभी आप उसको देख रहे हो अंडर योर इकोनॉमिक बेनिफिट। इसमें आपका कॉस्टिंग क्या पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या पड़ रहा है, ठीक है। देन आपका इसमें जो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड ऑल दोस ब्रेक इवन पॉइंट क्या पड़ रहा है, ये सारे पॉइंट्स हमको यहाँ पर देखने के लिए देखने की जरूरत है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि प्रोटोटाइप डिजाइन किया, उसके बाद इनिशियल डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन मॉडल तैयार किया, ठीक है, इनिशियल डिजाइन। तो इनिशियल डिजाइन जब हम प्रोडक्शन मॉडल का तैयार कर रहे हैं, तो इनिशियल डिजाइन के बाद हमें आ जाना पड़ता है इकोनॉमिक इवैल्यूएशन में। इकोनॉमिक इवैल्यूएशन में हम लोग को
ब्रेक इवन पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा कि किस लेवल का प्रोडक्ट, मतलब किस लेवल तक हमें बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उतना प्रोडक्ट अगर नहीं बनाएंगे तो नहीं चलेगा। तो इस तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट क्या पड़ रहा है, कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है, ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एनालिसिस में यही सारी चीज आ जाते हैं आपका, लाइक बीईपी आ गया, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ गया, देन योर फिक्स्ड कॉस्ट, कितना फिक्स्ड कॉस्ट पड़ रहा है और कितना वेरिएबल कॉस्ट पड़ रहा है। दिस आर द थिंग वी मस्ट कंसिडर। और एक और चीज होती है ना, जब हम देखते हैं ये सारी चीजें, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट स्टिल आई टेल यू वन थिंग, ग्रेटर, जब हम लोग का ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट इन योर फिक्स्ड एसेट, द ग्रेटर आर फिक्स्ड कॉस्ट। हमारा फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा रहेगा ना, तो एक तो फिक्स्ड एसेट्स अगर ज्यादा लग रहे हैं, जैसे मशीनरीज वगैरह ज्यादा लग रही हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स ज्यादा हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट हाई होगा। फिक्स्ड कॉस्ट हाई होगा तो बीईपी लेवल ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। break even point, I hope you all are aware of break even point. break even point clear है ना? अनम्यूट करके बोलिए। ओके, चलो इकोनॉमिक इवैल्यूएशन के बाद हम लोग आ जाते हैं मार्केट टेस्टिंग में। मार्केट टेस्टिंग मतलब सिंपल सी बात है, आप स्मॉल एक सैंपल मार्केट को लेकर टेस्ट करते हो, देन यू इनिशियल एक मार्केट टेस्टिंग होती है। मार्केट में अगर वो सेटिस्फैक्टरी एक रिस्पॉन्स आता है कस्टमर्स का, nowadays everything market testing is done online only, ऑनलाइन सर्वे होता है। कस्टमर्स को फ्री सैंपल जो वो भी डिलीवरी थ्रू, मैंने थ्रू डिलीवरी दे आर सेंड टू कस्टमर्स, उसके बाद उनके फीडबैक लिए जाते हैं। पहले होती थी डोर टू डोर, एक फ्री सैंपल आता था, उससे फिर कस्टमर्स के रिस्पॉन्स कलेक्ट किए जाते थे। तो मार्केट टेस्टिंग में ये सारी चीज आती है। मार्केट टेस्टिंग में अगर सेटिस्फैक्टरी हो गया सब चीज, तो हम लोग जाते हैं फाइनल डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन मॉडल्स। अब देखो सीधी सी बात है, प्रोडक्शन मॉडल मतलब क्या, प्रोडक्शन जहां पे होना है कैसे होना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करना, उसकी लेआउट फैसिलिटी डिजाइन करना, ये सारी चीज हो जाती है प्रोडक्शन मॉडल में। तो ये जब हम लोग प्रोडक्शन के जो डिजाइन पढ़ेंगे, डिजाइन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, उसमें ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आप लोग कुछ पूछना है इसमें?